Hello student, good morning. Today is Basant Panchami, so I wish to you very happy Basant Panchami and Ma Saraswati provide to you knowledge and wisdom. So yesterday I told about the circulatory system, second part, na, their composition of blood and kinds of blood, what is the lifespan of blood. And today we are going to study the blood circulatory system. It is very important part of mm, human circulatory system. You know, blood circulatory system. So circulatory system mainly consists of the heart, blood vessel. In blood vessels come atrium, vein, and capillary. And four chamber present. Two are ventrium and two are arterium. These four parts play very important role for the circulation of the blood in the human body. Na? Heart is very important. You also know that that is triangular structure, and it is situated on left side of our body, na? Above the abdomen. Okay, so you are going to study about the circulation of blood in the human body. Yeah, you know that heart is very important organ. Without heart, you can't live. So this consists of heart, blood and blood vessels, na? Atrium, vein and vein capillary. Heart is where is situated heart? Do you know? Heart is just situated, that is the right of the center body of two lungs and above the diaphragm. Okay, it is protected by a double layers membrane that is known as pericardium. In pericardium, that liquid present which provide to protection to the heart. And coronary artery, you also see the coronary artery to produce oxygenated blood, which coronary arteries block on heel attached to myocardium. Myocardium, that is like infection, that one myocardium in the heart causing problem, that is myocardium. Mm, uh, mm, and myocardial infection, that is known as, and that myocardial affection also causes हार्ट अटैक. आप सोचते होंगे, सुनते होंगे उनको हार्ट अटैक आ गया, तो मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसी के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हार्ट का सर्कुलेशन जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है और वह हार्ट अटैक कॉज करता है. ठीक है, ये फोर चैम्बर हमारे हार्ट हैं. ठीक है, लेकिन देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल, राइट ऑर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रियम, है ना. तो इस तरीके से आपका सिचुएशन होता है इसका. तो पहले देखिए ब्लड कहाँ आ जाता है. फर्स्ट सर्कुलेट बट लेफ्ट एटीएम टू राइट एटीएम, लेफ्ट एटीएम ओके टू राइट atrium, okay, left atrium to right atrium. After then right ventricle to left ventricle. In the this one circulation of blood, this is deoxygenated blood from this vein. In vein present deoxygenated and artery the oxygenated blood. Also see that the pulmonary vein aorta, that is oxygenated blood that is flowing, that this is going around and coming from here, from the all organ sending to blood, and deoxygenated blood come here the vein, and again purification of this blood then sent to the heart. तो आर्टिया मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से दूर ले जाता है, और वेन जो रीजनल आर्टरी होती है उसको ले जाती है. इसमें क्या होता है, जो भी आपके ब्लड हैं, चार चैम्बर आपको मालूम ही है. तो ये दो होते हैं वेंट्रिकल, जो मेजर फंक्शन करते हैं ब्लड को पंप करने में. जैसे पंपिंग हमारे हार्ट का जैसे लगे पंपिंग है ना, टू द नेक्स्ट वेंट्रिकल. तो वेंट्रिकल जो है थिक मस्कुलर वाल, वेंट्रिकल का थिक मस्कुलर वाल होता है जो कि पंप करने में ब्लड को ले जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस लाता है ब्लड, पंप होता है, पंपिंग मशीन देखते हैं. उसी तरीके से हमारा हार्ट का काम क्या होता है, ये पंप करने का ही होता है. ठीक, फिर ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, फिर जो है देखिए ब्लड वेसल्स हैं, ये जो है इसमें जाकर के एंटर कर जाते हैं ब्लड, बाय दे हैव टू पंप टू ब्लड टू द डिस्टेंस, एंड ब्लड वेसल्स एंट्री टू द हार्ट एंड एंटीरिया वेना कोवा. एंटीरिया वेना कोवा कैसा ब्लड होता है, उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है.
जो कि एंटीरियर से लेकर ये जो है हमारे हेड से लेके चेस्ट तक, लेग तक सब ले जाता है ब्लड, ठीक है। पोस्टीरियर उन का क्या होता है ब्लड, हम पोस्टीरियर उनको लोअर लीजन ऑफ द बॉडी, लोअर लीजन मतलब लेग्स जो ले जाता है, ये अपर पोर्शन में जो है हार्ट है और सभी चीज़ों में हेड में ले जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए जो भी इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी वेसल्स होते हैं इसमें, ठीक है, अराइज फ्रॉम द वेंटिकुलर एंड कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग फ्रॉम द ऑक्सीनेशन। मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये वेंट्रिकल से जो है ब्लड को डीऑक्सीनेटेड मतलब उसमें अशुद्धि होती है तो उसको ले जाती है, ठीक है, और ऑक्सीनेशन के लिए। वार्टा जो होता है ओवर फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वार्टा होता है। देखिए इसमें उतने होते तो इसमें देख रहे हैं ना, टाइकस्पिड वाल है। टाइकस्पिड वाल क्या होता है, वाल का काम क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे मतलब ब्लड के जो है उसके जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना और धीरे धीरे इसको छोड़ता है जिससे ज़्यादा प्रेशर न बने, इजीली जो है ब्लड फ्लो हो जाए, ठीक है। फिर जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है दूर चली जाती है, उसमें हार्ट से लेकर के ब्लड को डीऑक्सीनेटेड करके और पूरे पार्ट से इकट्ठा करके ले जाती है। और कोरोनरी हार्ट राइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होती है और ऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाती है, पूरे बॉडी के अंदर यह सप्लाई करती है ब्लड को, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है हार्ट बीट, जैसे हम लोग का हार्ट होता है ना, बीट होता है जैसे ऐसे रखिए तो लब डब बोलता है इसमें ना हार्ट बीट मैन। तो जो हार्ट बीट होता है 0.85 सेकंड में होता है, एक बीट होगा, फिर 0 से दूसरा बीट होता है। इसी तरीके से जो है हार्ट साउंड, जैसे आप जैसे डॉक्टर देखे होंगे स्टेथोस्कोप लगाते हैं आप पे ना हार्ट पे आपके, तो उस पर देखने करते खांसो खांसो तेज से जो है सांस लो, तो उससे क्या होता है, उससे साउंड निकलती है, उससे लब और डब की साउंड प्रोड्यूस बाय द वार्टा वेंट्रिकल में जब टाइकस्पिड वाल में जाती है ब्लड, उससे जब क्लोज होती है तो शार्पली टेन स्टार्ट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल जानते हैं आप लोग, जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, जैसे सिस्टोल होता है डायस्टोल होता है ना। साउंड डब कैसे प्रोड्यूस होता है, बाई पिगमेंटेशन होता है इसमें, ठीक है, वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाता है। फिर सिमिलरली वाल्व जो होती है उसकी आर्टरा की पल्मोनरी आर्टरी में जाती है और वहाँ से जाके क्लोज हो जाती है। देखिए जैसे डॉक्टर होता है, आप पल्स यहाँ रख लेता है ना यहाँ पर आपके हाथ पे और पूरा हार्ट बीटिंग जान लेता है कितना है, इसी से होता है इसी से ना। और देखिए जो पेस मेकर, जैसे लोगों का कुछ लोगों का जैसे हार्ट की खराबी कुछ जाती है, डॉक्टर पेस मेकर लगा देते हैं। पेस मेकर क्या होता है, वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक इम्पल्स देता है आपको बॉडी को, बैटरी से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देता रहता है, और जहाँ जहाँ बैटरी गई तो आदमी गया है। हम्म? तो पेस मेकर उसको जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है, जिससे हार्ट हमारा बीट करता रहता है। और जो ब्लड वेसल्स इसमें होते हैं वो एक ट्यूब के रूप में होते हैं, एक्सटेंड करते हैं हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी में, ठीक है। थ्री काइंड्स के होते हैं वेसल्स, एट्रियम होता है, ठीक, कैपिलरी होती है वेन, एट्रियम और कैपिलरी और वेन। तो एट्रियम वेसल्स होता है जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज जो होती है ब्लड को दूर ले जाती है इसको। और क्या होती है, क्या विशेषता होती है इसकी आर्टरीज की जानते हैं, ये थिक होती है, थिक मतलब थोड़ी मोटी होगी, नैरो होगी, ब्लड फ्लो करेगा इसमें, और कार्पसल्स होती है वेंट्रिकल्स होते हुए कांटेक्ट करके उसमें चलता चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से ब्लड की सप्लाई जो होती है। और वेंस की देखिए क्या होती है, इसकी मसल्स वाल जो होती है वाइड होती है, ल्यूमेन फ्लो मेनली पैक्ड शेप्ड वाल्व, और इसमें जो है पैकेट होता है उसके वाल्व होती है, उसको वहाँ होती है। कैपिलरीज क्या होती है, वेल कंटेनिंग ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ब्लड, सिंगल लेयर होती है इसमें ब्लड कैपिलरीज में। ये फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन काम करता है, जो भी जितने न्यूट्रिएंट मटेरियल बॉडी के अंदर बन रही है वो उसको जो है क्या करता है, डिफ्यूज करके ले जाता है सब्सटेंस को, जैसे ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुआ, यूरिया हुआ, हार्मोन होगा, सबको ये ले जाएगा। और WBC को स्क्वीज करती है कैपिलरी, ठीक है, बाई द मीन्स ऑफ हेमोवाइड, हेमोवाइड मूवमेंट जो होती है उसी से जो है इसको स्क्वीजेशन, जो किसको निचोड़ दिया जाए उससे करके उसको निकाल लेती है उससे। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम देखिए जो वेन से स्टार्ट होती है स्टमक से, ठीक है, इंटेस्टाइन से होते हुए डायरेक्टली कन्वे करती है ब्लड को। ये पास्टीरियर मोनोकोआ होता है जो कि ये प्योर ब्लड को ले जाता है ना।
तो पोर्टल वेन जो होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, कैपिलरीज से, और एंड भी होती है कैपिलरीज से। ये सप्लाई करती है वेंस को। जो जितने मेटाबॉलिक वेस्ट, जो आप तो जानते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूवल करता ले जाता है और फिल्ट्रेशन ले जाता है, किडनी तक पहुंचाता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है वेंस में जितनी होती है। लीवर देखिए हमारा जो सबसे लार्जेस्ट आर्गन है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ को जो होते हैं वह जो है किडनी के बाद इसी का नंबर है, जो कि वह जो पूरे इम्प्योरिटीज़ को जितने टॉक्सिक मटेरियल है उसको क्या करता है, फिल्टर कर देता है और डाइजेस्ट करता है फैट को। क्या क्या हार्ट काम होता है, हीट भी प्रोवाइड करता है, बाइल जूस बनाता है। तो लीवर हमारा क्या काम है, डाइजेस्ट करता है फैट को, हीट भी बॉडी को मेंटेन करता है, बाइल जूस बनाता है, और जितने वेस्ट फूड है उसको भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है लीवर। इसलिए देखिए लोग लीवर खराब होता है, जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं लीवर, तो जो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है और शरीर में जो बॉडी में जो है केराटिनॉइड्स बढ़ते रहते हैं, क्योंकि केराटिन एक बहुत टॉक्सिक मटेरियल है और वो पूरे बॉडी के अंदर फैल जाती है और आदमी की जो है लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से यह ऐसा होता है। आज डॉक्टर भी देखिए किसी को यह मर जाता है, कुछ हो जाता है, किसी को जो सुसाइड कर लिया या कोई जहर खा लिया, पहले क्या होता है लीवर निकाल लेते हैं, लीवर का एग्जामिन करते हैं, उसी लीवर से कलर से जो से पता चल जाता है कि यह इसके जहर खाया है कि गला घोट के मारा गया है, क्या है उस चीज़ को क्लियर हो जाती है। ठीक इस तरीके से लीवर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। पल्स भी देखिए, जैसे पल्स देते हैं बताया, जैसे आपको हाथ पे से रख दिया जाए इस तरह, डॉक्टर क्या देख काउंट करके आपका हार्ट बीट पल बता देता है। तो एक्सपेंशन और कॉन्स्ट्रक्शन एटीएम जो होती है, ऐसे पकड़े हम ना, देखिए आप फील करिए, तो एक्सटेंशन और कॉन्स्ट्रक्शन होता है जो होता है एटीएम का, उसी से आवाज़ आती है। और देखिए बीपी ब्लड प्रेशर देखिए आप बहुत बखूबी परिचित होंगे, आज कल घर में इंडिया में हर तीसरे व्यक्ति में एक को ब्लड प्रेशर है ना। तो यह ब्लड प्रेशर क्यों होता है फ्लो, ड्यू टू जो है एटीएम ऑन देयर वाल, एटीएम के वाल होती है, दो तरह के को लिमिट होते हैं इसके, अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, लोअर लिमिट को डायस्टोल कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एडल्ट मैन में, 110 टू 140 सिस्टोल में होता है, ठीक है। सिस्टोल जो ऊपर वाला कहते हैं 110 टू 140 mm, और डायस्टोल जो होता है 60 टू 80। ठीक, अगर आपका बीपी 140/90, 140 जो है क्या होता है डायस्टोल, और सिस्टोल 90 आ जाए, इसका मतलब कि आपको हाइपर टेंशन है, आपको ब्लड प्रेशर है। तो उसको लोग उसके लिए डॉक्टर स्पिग्नोमीटर जो होता है, ऐसा यंत्र होता है स्पिग्नोमीटर, जिससे जो है आपको का ब्लड प्रेशर, आप तो भाई डिजिटल आ गया, लगा दिए, डिजिटल जो होता है रीड कर लेता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या है, जितनी भी चीज़ें या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कितने वाल्व्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं उनकी, कैसे कहाँ जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, कहाँ ऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। और इसको एक बार स्ट्रक्चर जैसे आप दिया हुआ हूँ, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे, सी यू मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास।